ہندوستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر ایک ہی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ کسی دوسرے رنگ کے لیے فی الحال یہاں کوئی گنجائش نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو تقریباً بے حیثیت بنا ہی دیا گیا ہے۔ انہیں موجودہ سیاسی منظرنامے سے باہر رکھنے کے لیے قابل ذکر مسلم آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا جانے کا جو سلسلہ آزادی کے بعد سے شروع ہوا تھا، اس میں مزید تیزی دکھائی جا رہی ہے۔ سیاسی گلیاروں میں بھی ایک مستقل شکایت طویل عرصے سے گونج رہی ہے، جس میں الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مسلم اکثریت والے شہروں میں حد بندی کا عمل، یعنی لوک سبھا کی باؤنڈریز بنانے کا عمل جو ہے کرتے ہوئے مسلم طبقے کی آبادی کو اس حکمت عملی کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی انتخابی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ دیش میں فی الحال لوک سبھا انتخابات چالو ہیں۔ اس عمل میں اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلم اکثریتی آبادی والے حلقے دلت طبقے کے لیے مخصوص یعنی ریزرویشن کر دی جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کیا جا سکے۔ نتیجن ایسا حلقہ کسی مسلمان کو منتخب نہیں کر سکتا، چاہے وہ اکثریت میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں میں دلت طبقہ شامل نہیں ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ آزادی کے بعد سے یہ عمل 3 بار اب تک انجام دیا جا چکا ہے۔ پہلے 1951، دوسرا 1967 اور تیسرا 2002 اور چوتھا 2026 میں ہوگا۔ یہ عمل انجام دیا جائے گا۔ اس غرض سے پارلیمنٹ پر مرتبہ ایک قانون منظور کرتی ہے جس کے ذریعے ایک حد بندی کمیشن کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کمیشن کو یہ قانونی اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تقریباً برابر ووٹوں کی بنیاد پر ایک لوک سبھا کا اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی حد بندی کرے اور SC/ST حلقوں کو بھی نامزد کرے۔ عموماً ایک ریاست میں ان طبقات کی آبادی کے تناسب سے حلقے یعنی لوک سبھا کے حلقے جو ہے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ اس طرح حلقہ بند کرنے کے بعد میں اصول و ضابط بھی مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کمیشن کا تعاون کرنے کے لیے مقامی MLA، MP، سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کمیشن ایک ڈرافٹ تیار کر کے عوامی رائے لیتا ہے۔ اس پر ہر شخص کو رائے دینے اور اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر عدالت سے رجوع کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب یہ ڈرافٹ قبول ہو جاتا ہے اور گیزٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد عدالت سے بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کوئی مسلمانوں میں اعتراض نہیں جتایا۔ المیہ یہ ہے کہ مقامی مسلم MLA اور MP اس عمل میں یا تو کوئی دلچسپی ہی نہیں لیتے یا پھر محض اپنی سیٹ بچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مسلم سیاسی، سماجی اور دینی تنظیمیں تو اس بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتی، بلکہ اکثر تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا گراف ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ملک میں ان کی آواز کمزور اور بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہندوستان میں جمہوریت کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کھیلا جانے والا ایک شاطرانہ کھیل ہے۔ اس متنازع مسئلے کی بنیاد پر یہ الزام ہے کہ اس طرح کی حد بندی کی مشقیں پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی کو روکتی ہیں۔ اس تشویش کا اظہار جسٹس راجندر سچر کمیٹی کے نتائج اور اس کے بعد رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے، جس میں قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے انتخابی نشستوں کو محفوظ کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ ان سفارشات کے باوجود زمینی صورتحال بدستور برقرار ہے، جس سے ملک کے جمہوری عمل میں ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 15ویں مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق گوپال گنج بہار میں مسلمانوں کی آبادی 17% سے زیادہ ہے، جبکہ دلت صرف 12% کے قریب ہیں، لیکن یہ نشست دلتوں کے لیے مختص یعنی ریزرویشن کر دی گئی ہے۔ ایسا ہی بجنور UP کی نگینہ سیٹ پر 43.04% مسلمان ہیں، جبکہ دلتوں کی تعداد صرف 21% ہے۔ یہ سیٹ دلتوں کے لیے ریزروڈ ہے۔ بلند شہر UP میں مسلمانوں کی آبادی دلتوں سے 2% زیادہ ہے، لیکن دلت مخصوص نشست ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبند اور کیرانہ تقسیم کے وقت سے لے کر 60 کی دہائی تک ایک پارلیمانی حلقے کے طور پر متحد رہے۔ اس دوران کانگریس امیدوار نے اس انتخابی ضلع میں مسلسل کامیابی حاصل کی، لیکن ایک اہم موڑ آیا جب غیور علی خان اس حلقے سے رام منوہر لوہیا کی سوشلسٹ پارٹی، جس کا انتخابی نشان برگد کا درخت تھا، کے ٹکٹ پر جیت گئے۔ اس غیر متوقع فتح نے
इंदिरा गांधी को हैरान कर दिया और इन्होंने देवबंद को हरिद्वार के साथ जम कर दिया। इसके बाद इसे शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया, मखसूस नशिस्त के तौर पर रिजर्व कर दिया गया। इस तरह से मुजफ्फरनगर सीट का भी यही हाल हुआ, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाके को काट करके इनके वोट को बेवजन बनाने की दानिश्ता कोशिश की गई। इस तरीके से सियासत की करती चली आ रही है और हमारे मुस्लिम नुमाइंदों को इसमें समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट की बेवजनी और इसका हल क्या हो सकता है। नाशिर, भारत में चंद माह में यानी कुछ दिनों में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन मरकजी हुकूमत के लिए होते हैं। इसलिए लोकसभा की खास बात ये होती है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होता है, जबकि विधानसभा यानी सूबाई हुकूमत के लिए मुद्दत मुअय्यना पूरी होने के लिए बाद ही इलेक्शन होते हैं। सूबाई इलेक्शन में इन्हें मखसूस सूबों में हलचल देखने को मिलती है। ये अलग अलग होते हैं, हर रियासत में अपने वक्त पर मुअय्यन होते हैं जहाँ इलेक्शन होने होते हैं, लेकिन लोकसभा में पूरा मुल्क इस सरगर्मी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में ये जानना निहायत ज़रूरी है कि मरकज़ी हुकूमत के इंतखाब में मुस्लिम कहाँ खड़े हैं, यानी लोकसभा के इलेक्शन में मुस्लिम कहाँ खड़े हैं, मुल्क में मुस्लिम अक्सरियती हल्के कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। हमारे बहुत से भाइयों को ये गुमान होता है कि लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटों की अहमियत ही नहीं है, मुस्लिम वोटर इस इलेक्शन में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सी ज़्यादा बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। तो चलिए एक नज़र मुस्लिम हल्कों पर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में ये जानना निहायत ज़रूरी है कि मरकज़ी हुकूमत के इंतखाब में मुस्लिम कहाँ खड़े हैं, मुल्क में मुस्लिम अक्सरियती हल्के कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। हमारे बहुत से भाइयों को ये गुमान है कि लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटों की अहमियत नहीं है, मुस्लिम वोटर इस इलेक्शन में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा जो हल्के बनाए गए हैं उन हल्कों के ताल्लुक़ से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम अक्सरियत वाले हल्के को कहीं रिज़र्व किया गया है, कहीं उसको जो है तो अलग तरीके से किसी और के साथ मिला दिया गया है। तो ऐसी कुछ शातिराना चालें चली गई हैं जिसमें ये सब किया जा रहा है। फिलहाल भारत में 543 हल्के हैं। आईने हिंद में लोकसभा के अरकान की ज़्यादा तादाद 552 रखी गई है, जिनमें 530 अरकान रियासतों से मुंतखब होकर आते हैं और 20 अरकान यूनियन इलाकों से मुंतखब होते हैं। बाकी 2 अंग्रेज़ भारतीयों के लिए मुख्तसिस हैं, जिनका इंतखाब भारतीय सदर की जानिब से होता है। 2019 के आईनी तरमीम के बाद 2 नशिस्तें कम कर दी गई थीं और अब ये तादाद कुल 550 है। मौजूदा लोकसभा में अरकान की हद 543 है, जिनमें से 524 रियासतों और 19 यूनियन इलाकों पर मुश्तमिल है। पूरे मुल्क में 35 नशिस्तें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज़ायद हैं। 38 नशिस्तों पर मुस्लिम वोटों की तादाद 21 से 30% तक लगभग है। इस मुनासिबत से 145 नशिस्तों में से मुस्लिम वोटर 11 से 20% तक हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 115 जुमला लोकसभा की सीटों में मुस्लिम वोट 20% से ज़ायद हैं और इसके अलावा 132 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटों का असर है। इसके अलावा लोकसभा की 218 ऐसी नशिस्तें हैं जहां मुस्लिम वोटर खासन असर रखते हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 18 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 14% इस लिहाज से लोकसभा में मुस्लिम सियासतदानों की तादाद 76 होनी चाहिए। 2014 में 23 और 2021 में 27 मुस्लिम सियासतदान लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। आबादी के लिहाज से फिलहाल मुसलमानों की नुमाइंदगी महज 4% हिस्सा ही किया जा रहा है। 1952 से 1977 तक मुल्क में कांग्रेस का इख्तिदार रहा और इस दौरान मुस्लिम सियासतदानों की तादाद महज 2 से 7% ही रही। 1980 में सबसे ज़्यादा 150 मुस्लिम सियासतदान जो है लोकसभा पहुंचे थे। तब से अब तक ये तादाद बजाय तरक्की के डाउन की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाती शिकार होती रही है। आसाम में 4, बिहार में 3, बंगाल में 9, जम्मू कश्मीर में 5, केरला में 4, तेलंगाना में 1 और लक्षद्वीप में 1, उत्तर प्रदेश में 8। इसके अलावा मज़कूरा जितनी भी आदाद ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये वाज़े हो गया है कि मुस्लिम वोट अब भी इतना है कि जितना हम चाहें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। हम सियासत का शिकार हैं, हमको सियासत समझ में नहीं आती, हम दूसरों की चालों में उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। मुस्लिम बेशतर आबादी वाले इलाकों में, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला इलाका है, या तो वो किसी न किसी सूरत में रिजर्व है या तो उसको कहीं और से जोड़ दिया गया है। मुसलमानों के वोटों को यानी माइनॉरिटीज़ के वोटों को बेअसर करने के लिए कहीं साजिशें और कहीं शातिराना चाल और कहीं जो है बहुत सी तरकीबें आजमाई जाती हैं।
اور इसमें तो पूरी तरीके से मुसलमान जो है इसमें मुलविस हो जाते हैं। मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर अंदरूनी मसाइल से बांट दिया जाता है, जबकि मुसलमानों की 1/3 आबादी की मुनासिबत से अगर देखा जाए तो 543 में से कम 100 लोकसभा में 100 लोकसभा के मेंबर जो है 100 MP मुस्लिम होने चाहिए अगर ये सियासत सही तरीके से की जाए। अगर मुसलमानों में ये शऊर आ जाए और मुसलमान उस सीट के लिए ऑब्जेक्शन रेज करें, अपना वहाँ पे एतराज़ दायर करें, लेकिन जो कि मुसलमान नहीं करते, जहाँ पे लोकसभा की सीट के लिए जो इलाका मखसूस किया जाता है जिसमें मुसलमानों की आबादी का तनासुब ज़्यादा होता है, लेकिन वो किसी और ज़ुमरे के लिए किसी और के लिए जो है रिजर्व किया जाता है, तब मुसलमान जितने भी आज आपको देखने को मिलते हैं ये तमाम के तमाम लोग अपनी खामोशी चुप्पी साधे हुए हैं। ये उस पर किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, ना ही कोई शिकायत इस बारे में दर्ज करवाते हैं। चुनांचे अगर हिंदुस्तान के पूरे नक्शे पर नज़र डाली जाए तो लगभग 132 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, जहां पे मुस्लिम बआसानी से जीत सकते हैं, लेकिन इनको रिजर्व कर दिया गया है। और जो बाकी बचे 20 से 30% के हैं, वहां पे कुछ ऐसी सियासत खेली जाती है कि हमारे पास हमारे मुस्लिम जो है लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े तो होते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। इसके लिए हमको बेहतरीन तरीके से सोच समझ की ज़रूरत है, एक अच्छी सियासत की ज़रूरत है, एक ऐसी सियासत की ज़रूरत है जो बाशऊर तरीके से जमहूरी तर्ज पर की जाए, जिससे हम सब लोग कामयाब हो सकें और इसमें लोकसभा में बाआवाज़ से बुलंद कर सकें। आप देख रहे थे दैनिक आज की आवाज़ जाहिद अल कसीरी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप देखते रहें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।